So we are starting with the new chapter, chapter 3, trigonometric equation functions. A very important chapter. Trigonometric equation पहले समझेंगे. What is a trigonometric equation? Actually I tell you x square minus 2x plus 5 equal to 0. They are not trigonometric equations because उसमें sin theta cos theta कहीं भी involved नहीं है. Algebraic equations, transcendental equations उनके नाम है. But trigonometric equations ऐसे था. Sin theta is equal to 1 by 2, tan theta is equal to 2, cos 3 theta is equal to cos 5 theta. They are all trigonometric equations क्योंकि उसमें trigonometric ratios involved है. देखो, an equation involving trigonometric functions or functions is called trigonometric equation. For example, sin theta is equal to 1 by 2, tan theta is equal to 2, cos 3 theta is equal to cos 5 theta are all trigonometric equations. और आपको फिजिक्स में आता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, फिजिक्स का कंसेप्ट है. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्योंकि इसमें साइन इन्वॉल्व है. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? इसमें अगर बोलेंगे तो थीटा की वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशंस. अगर sin x इज इक्वल टू 1 by 2 है तो x की वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन definition, a value of a variable in this case is theta. अगर sin x is equal to 1 by 2 बोला तो x, इसमें theta. A value of a variable in a trigonometric equation which satisfies the equation is called a solution of the trigonometric equation. I repeat, a value of a variable, it can be either theta or x or even y also. Value of a variable in a trigonometric equation which satisfies the given equation is called a solution of the trigonometric equation. A trigonometric equation can have more than one solutions. For example, theta is equal to pi by 6 satisfies the equation sin theta is equal to 1 by 2. We all know sin theta is equal to 1 by 2. कब आता है? जब theta is equal to pi by 6. What is sin pi by 6? 1 by 2. Therefore, pi by 6 is called a solution of the trigonometric equation sin theta is equal to 1 by 2. But sin of pi by 6 कितना आता है? 1 by 2. How much is sin of pi by 6? 1 by 2. Therefore, 5 pi by 6 is also a solution of sin theta is equal to 1 by 2. हो गया? तो sin theta is equal to 1 by 2 ये trigonometric equation है. उसके कितने solutions है? अभी दो तो मिल गए. इट कैन हैव मोर देन 2 ऑल्सो. एक है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, एक है थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6. एंड लेट मी टेल यू साइन एक्स वगैरह ये एसएचएम टाइप चलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस है, तो दे कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. उसमें से दो सॉल्यूशन तो मैंने आपको निकाल दिए. एक था पाई बाय 6, एक था 5 पाई बाय 6. ओके, तो व्हाट इज साइन पाई बाय 6? 1 by 2. What is sin of 5 pi by 6? 1 by 2. Therefore, sin theta is equal to 1 by 2 has more than one solution. एक है pi by 6, एक है 5 pi by 6. Or many more you can go. Now we'll go to the principal solutions of a trigonometric functions. Principal solution किसको बोलते हैं पहले बता दूं. Solutions जिसकी वैल्यू 0 और 2 pi के बीच में. I repeat, 0 और 2 pi के बीच में. बट 0 ले सकते हो, 2 पाई नहीं ले सकते हैं. याद रखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिनकी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में, 0 360 बीच में. 0 ले सकते हो लेकिन 360 लेने का नहीं. अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन 2 पाई. कैजुअल रहो मत, यहां इक्वल टू है, यहां इक्वल टू नहीं है. ओके, 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन 2 पाई. यानी अल्फा कैन टेक द वैल्यू 0 बट अल्फा कैन नॉट टेक द वैल्यू 2 पाई. अल्फा कैन टेक द वैल्यू 0 डिग्री बट अल्फा कैन नॉट टेक द वैल्यू 360 डिग्री. क्लियर हो गया? अब देखो, देयरफॉर पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6. यहां देखा 5 पाई बाय 6 यानी कितना होता है? 150 डिग्री. 150 डिग्री डेफिनेटली 360 के अंदर है. तो पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 आर
the principal solutions of the trigonometric equation sin theta is equal to 1/2. अब साइन ऑफ 13 पाई बाय 6 भी 1/2 आता है, साइन ऑफ 13 पाई बाय 6 भी 1/2 आता है, लेकिन 13 पाई बाय 6 0 और 2 पाई के बीच में नहीं आता. दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन. इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. वेरी वेरी गुड. नोट दैट 13 पाई बाय 6 इज अ सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है, बट नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin theta is equal to 1/2. क्यों? क्योंकि 13 पाई बाय 6 does not belong to close bracket 0 open bracket 2 pi. अब 0 is the principal solution of the equation sin theta is equal to 0. We all know sin 0 0, sin 0 0, sin 2 pi 0, sin 2 pi 0. But क्या 2 pi principal solution है? Very good. बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि 2 pi does not belong to this 0 to 2 pi condition. 0 ले सकते हो लेकिन 2 pi नहीं ले सकते हो. 0 is the principal solution of the equation sin theta is equal to 0, but 2 pi is not a principal solution. Trigonometric equation cos theta is equal to -1 has only one principal solution, theta is equal to pi. How much is cos pi? -1. Very good. Cos pi is -1. Only one principal solution है, cos theta is equal to -1. Normally two principal solutions रहते हैं normally, but cos theta is equal to -1 has only one principal solution, theta is equal to pi. Example शुरू करते हैं. Find the principal solutions of sin theta is equal to 1/√2. तो आपको पहले बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए किस एंगल की साइन वैल्यू 1/√2 आती है. 45 डिग्री, पाई बाय 4. तो पहला आएगा as sin of pi by 4 is equal to 1/√2 and 0 less than or equal to pi by 4 less than 2 pi. कंफर्म है. 0 45 डिग्री जो है, पाई बाय 4 एंड कितना डिग्री? 45 डिग्री. 0 और 360 के बीच में आता, इसीलिए पाई बाय 4 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. पाई बाय 4 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब और एक चाहिए मेरे को, तो आई विल यूज अलाइड एंगल. What is sin of pi minus theta? Sin theta. Very good. By allied angle, sin theta is equal to sin of pi minus theta. Fully agreed. Sin theta is equal to sin of pi minus theta. We all know. Sin जादू की छड़ी नहीं है. Sin का sin ही रहता है. Cos नहीं होता है. So sin of pi minus theta is sin theta. अब यहाँ पे लिखूंगा put theta is equal to pi by 4. तो ये हो जाएगा sin of pi by 4 is equal to sin of pi minus pi by 4. साइन ऑफ पाई बाय 4, थीटा की जगह पाई बाय 4 डाला, इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4. एलसीएम लो, 4 पाई माइनस पाई, साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, 45 इंटू 3, 135 डिग्री. सर्टनली बिटवीन 0 और 2 पाई के बीच में, इसलिए एंड 0 लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई. Therefore 3 pi by 4 is also a principal solution. Hence pi by 4 and 3 pi by 4 are the principal solutions of sin theta is equal to 1/√2. That's all. Next example. Find the principal solutions of cos theta is equal to 1/2. अब cos थीटा इज इक्वल टू +1/2 है, तो पहले आपको ये देखना है कि 0 to 90 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी cos वैल्यू 1/2 आती है. तो वो एंगल है 60 डिग्री यानी पाई बाय 3. तो वहां लिखेंगे आंसर में एज cos ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1/2 एंड 0 लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 3 लेस देन 2 पाई. पाई बाय 3 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. एक तो मिल गया अपने को, एक्यूट एंगल मिल गया. पाई बाय 3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब अलाइड एंगल यूज करूंगा, तो अलाइड एंगल में क्या क्या यूज करना है? cos ऑफ पाई माइनस थीटा. बट cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, जबकि अपने को +1/2 चाहिए. cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा चलेगा नहीं. cos ऑफ पाई प्लस थीटा अगेन माइनस cos थीटा चलेगा नहीं. बट cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा देखा अपन ने,
तो क्या होता है देखो, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos ऑफ 0 माइनस थीटा, क्योंकि 0 और 2 पाई के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं, तो अपन इसको 2 पाई माइनस थीटा को लिख सकते हो cos ऑफ 0 माइनस थीटा, यानी आई कैन राइट cos ऑफ माइनस थीटा, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दिस इज इक्वल टू cos थीटा। तो इसीलिए अपन ने क्या यूज किया, बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 3, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, क्या मिलता है अपने को देखो, cos ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3। I repeat, cos ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3। एलसीएम लो 6 पाई माइनस पाई यानी cos ऑफ 5 पाई बाय 3। अब कंफर्म करो कि 5 पाई बाय 3 0 और 360 के बीच में है कि नहीं है, तो पाई बाय 3, पाई यानी 180, 180 बाय 3 यानी 60, 65 जा 300, 300 डिग्री certainly less than 360 degree. Therefore, cos of pi by 3 is equal to cos of 5 pi by 3. 5 pi by 3 also lie between 0 and 2 pi. Cos of, therefore 5 pi by 3 is also a principal solution because cos of pi by 3 कितना है 1 by 2, यानी cos of 5 pi by 3 भी कितना होगा 1 by 2. Therefore 5 pi by 3 is also a principal solution. Therefore pi by 3 and 5 pi by 3 are the principal solutions of the trigonometric equation. We call it TE, trigonometric equation cos theta is equal to 1 by 2. Next example है, अब थोड़ा खतरनाक सिचुएशन आ गई, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos theta is equal to -1 by 2. निगेटिव वाले आ गए, निगेटिव वाले आ गए, एक्यूट एंगल तो गए, फिर लेकिन अपन ने क्या करने का, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 है ऐसा अज्यूम किया तो पाई बाय 3 काम में आएगा, करेक्ट है। तो वी नो दैट cos ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2, यानी थोड़ी देर के लिए माइनस साइन भूल गए तो cos ऑफ पाई बाय 3 1 बाय 2 आ गया। अब अपने को चाहिए -1 बाय 2, यानी cos की वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, तो अलाइड एंगल्स दो मिलते हैं अपने को, cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या है माइनस cos थीटा, cos ऑफ पाई प्लस थीटा क्या है माइनस cos थीटा, तो अपन लिखेंगे अल्सो बाय अलाइड एंगल cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा बाय अलाइड एंगल्स। अब थीटा की जगह क्या पुट कर दो, पाई बाय 3, पाई बाय 3 पुट कर दो, देयरफॉर cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, थीटा की जगह पाई बाय 3 पुट किया तो इज इक्वल टू minus cos pi by 3 is equal to -1 by 2 and cos of pi plus pi by 3 is also equal to -1 by 2 by allied angle formula. अब what is cos of pi minus pi by 3, LCM लेंगे तो cos of 2 pi by 3 is equal to -1 by 2 and cos of 4 pi by 3 is also -1 by 2, LCM लो 3 pi plus pi upon 3 is also -1 by 2. That means I got two angles between 0 to 360 जिनकी cos वैल्यू -1 by 2 आती है। So also 0 less than or equal to 2 pi by 3 less than 2 pi and 0 less than or equal to 4 pi by 3 less than 2 pi. ये कंफर्म करो, ये तो कंफर्म है 0 to 2 pi के बीच में है। इसको कैसे कंफर्म करेंगे, 4 pi by 3 यानी 4 into pi by 3, pi by 3 यानी 60 डिग्री, 60 into 4 240 degree, 240 degree is certainly less than 360 degree is less than 2 pi. Therefore 2 pi by 3 and 4 pi by 3 are the principal solutions of cos theta is equal to -1 by 2. That's all.